क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। ક્લોઝિંગ કેપિટલ ના પ્રાયોજક છે ટ્રેડબુલ્સ. अब ट्रेडिंग सबके बस की बात है. ગુડ આફ્ટરનૂન. સ્વાગત આપનું ક્લોઝિંગ કેપિટલમાં. હું યશ આપની સાથે. આજે એક્સપાયરીને દિવસે નિફ્ટીમાં લગભગ 175 પોઈન્ટ્સ આસપાસની રેન્જ જોવા મળી. સાઇડવેઝ ટુ નેગેટિવ ઝોન થોડું બનતું જોવા મળેલું છે. બધા જ સેટઅપ પર નજર કરીશું, પણ આવો પહેલા હેડલાઇન્સ તો જોઈ લઈએ. સતત બીજા દિવસે માર્કેટમાં નરમાશ. નિફ્ટી ઉચ્ચતમ સ્તરથી 100 અંક ઘટી 25,175 પર. બેંક નિફ્ટી 50 અંક વધી 51,500 નજીક. આઈટી પીએસયુ શેર્સમાં દબાણ. ડાઉ ફ્યુચર્સ 40 અંક ઉપર. યુરોપિયન માર્કેટમાં મિશ્ર કારોબાર. એશિયન માર્કેટ્સમાં પણ મિશ્ર રહ્યા સંકેતો. સતત ત્રીજા દિવસે તેજી સાથે લાઈફ હાઈ પર ફાર્મા ઇન્ડેક્સ. ડિવિઝ લેબ નિફ્ટીના ટોપ ગેઇનરમાં. લોરસ લેબ વાયદા બજારનો ટોપ ગેઇનર. સિન્જિન બાયોકોન 3-4% સુધી વધ્યા. લાઈફ હાઈ પર મિડ અને સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ. ગુજરાત ફ્લોરો 10% વધ્યો. ફોર્ટિસ હેલ્થકેર અને યુટીઆઈ એએમસીમાં 5%ની તેજી. સસ્તા ક્રૂડ ઓઇલથી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓમાં તેજી. આઈઓસી 3%ની તેજી પર. લાઈફ હાઈ પર એચપીસીએલ. આવો સીધા જઈએ અમારા ઇન્ટરેક્ટિવ વોલ પર. સમજીએ ભારતીય માર્કેટ્સ આજે શું કરતા જોવા મળ્યા. એક્સપાયરીનો દિવસ હતો. નિફ્ટીમાં ફાઇનલી તમને એક્શન આવવાનું હતું અને એ જ પ્રમાણે લિમિટેડ રેન્જમાં પણ એક્શન આવતું જોવા મળેલું છે. પણ દિવસની શરૂઆતથી લઈને આગળ સુધીના જે સંકેતો બનતા જોવા મળેલા હતા તેમાં એક મેઇન વાત સામે આવી અને તે હતી 25,200ના કોલ રાઇટર્સ. અને એટલા માટે જ થઈને 25,200ના જે કોલ રાઇટર્સ છે તેમનું પોઝિશન જે છે તે એટલી વધતી જોવા મળી તમને કે જેને કારણે થઈને અહીંયા એક્શન આવતું જોવા મળેલું હતું. તો 25,200ના જે કોલ રાઇટર્સ છે તેના કારણે થઈને તમને એક્શન જે છે તે ભરપૂર બનતું જોવા મળેલું હતું. આવો આગળ વધીશું અને સમજીશું કે નિફ્ટીમાં રેન્જ શું બની છે. સૌથી પહેલાં તો રેન્જ જે તમને બનતી જોવા મળેલી છે તે અહીંયાથી રહેશે 25,000. અહીંયાથી જો દિવસના ન્યૂનતમ સ્તર બન્યા હતા 25,135ના તે, અને પછી ઉપર 25,275 એટલે ઓલમોસ્ટ 150 પોઈન્ટ આસપાસની રેન્જ તમને બનતી જોવા મળી. હવે થયું છે એ કે દિવસની શરૂઆતમાં તમે જે છે તે થોડી મજબૂતી સાથે ખુલ્યા. ત્યારબાદ ઉપરની તરફ 25,275ના ઉચ્ચતમ સ્તર તમને બનતા જોવા મળ્યા અને એ એક વખત થઈ ગયા બાદ ત્યાંથી પ્રોફિટ બુકિંગ ધીરે આવ્યું અને 25,200 પર બહુ અગ્રેસિવ કોલ રાઇટર્સ આજે આવ્યા, જેને કારણે તમે હવે 25,150થી પણ નીચે સરકી ગયા છો અને દબાણનો મૂળ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે. ડેઇલી ચાર્ટ્સ પર તમે જુઓ છો નિફ્ટીને પર્ટિક્યુલરલી આપણે વાત કરી હતી કે જે આ 20 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ છે તે તમારા સપોર્ટ તરીકે કામ કરશે અને એક્ઝેક્ટ એવું જ થઈ રહ્યું છે. સારી વાત એ પણ છે કે આ મૂવિંગ એવરેજ ધીરે ઉપર આવી રહી છે અને 25,100 ને નજીક હવે તમારી આ મૂવિંગ એવરેજ આવી ચૂકી છે. એટલે ઇનડાયરેક્ટ સપોર્ટ તમારા માટે થઈને હવે જે છે તે છે આ 25,100. હવે 25,100 ને બહુ નજીક છો તમે, એટલે પોતાના સપોર્ટ એરિયાને નજીક નિફ્ટી આજે ક્લોઝ આપવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં ઉપરના સ્તરે તમારું રેઝિસ્ટન્સ જે બને છે તે છે 25,200. કારણ કે આજે જ ત્યાં મોટા કોલ રાઇટર્સની સંખ્યા તમને જોવા મળે છે. 25,200 ને ઉપર પછી સીધા 333નું તમારું રેઝિસ્ટન્સ ટેકનિકલી આવી જાય છે. તો આવી સ્થિતિમાં 200 અને ત્યારબાદ 333 આ જ બે મહત્વના લેવલ્સ નીચે 25,100 ને ઉપરનું ક્લોઝ આજે બહુ જ જરૂરી છે. આ છે તમારા ડેઇલી ચાર્ટ્સ. હવે તમે આવી જાઓ અહીંયાથી 15 મિનિટના ચાર્ટ પર. 15 મિનિટના ચાર્ટમાં તમને આજે જોવા મળે છે દિવસની શરૂઆત એક મજબૂતી સાથે થઈ હતી, પણ ત્યાંથી શાર્પ સેલિંગ આવતું જોવા મળ્યું અને તમે જે જુઓ છો આ સિંગલ કેન્ડલ તેની અંદર જ તમને બહુ મોટી વેચવાલી આવતી જોવા મળી. ત્યારબાદ નિફ્ટીએ ડેઝ લો બનાવ્યા, પછી કન્સોલિડેશનનો માહોલ તમને જોવા મળ્યો અને ત્યારબાદ ફર્ધર સેલિંગ અત્યારે આવી રહ્યું છે, જેના કારણે તમે એકદમ આ લેવલને નજીક આવી ગયા છો. એટલે નિફ્ટી અત્યારે અહીંયા કારોબાર કરી રહ્યું છે એકદમ નીચે.
અને 25,100ના મેઇન સપોર્ટ છે તમારા. અત્યારે આપણે 135 પર. સો દિવસભર આ જે બ્લેક લાઇન તમે જે જુઓ છો તે છે 25,200નું લેવલ. તમે જુઓ એકવાર 25,200 તમે અહીંયાથી તોડ્યું, આ 1 2 3 કેન્ડલમાં પર્ટિક્યુલરલી 25,200 બચાવવાની કોશિશ પણ થઈ અને ત્યારબાદ એ તૂટ્યું, ત્યારબાદ એ રિક્લેમ ના થયું. એટલા માટે હવે 25,200 ટેમ્પરરીલી એક તમારા માટે રેઝિસ્ટન્સ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે, તે વાત પાક્કી. એટલા માટે 25,200 આપણે ધ્યાન પર રાખી રહ્યા છીએ. હવે ક્લોઝિંગ બેસિસ પર 25,200 ને ઉપર નિફ્ટીનું જવું જરૂરી છે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ આમ તો એક્સપાયરીનો દિવસ છે એટલે કંઈ વાત કરવાનો મતલબ નથી, પણ જેમ મેં વાત કરી 25,200ના કોલ રાઇટર્સ આજે બહુ અગ્રેસિવ થયા હતા, તેને કારણે થઈને ભારતીય માર્કેટ્સમાં પર્ટિક્યુલરલી નિફ્ટીમાં વધારે દબાણ આવતું તમને જોવા મળ્યું. ચેન્જ બતાવી દઉં ફટાફટ કે કઈ રીતે આજે 25,200ના કોલ રાઇટર્સ અગ્રેસિવ થયા હતા. તમે જુઓ 4 5 6 કરોડ આસપાસ આજનું જ એડિશન છે, બધા એક સાથે તૂટી પડ્યા હતા 25,200ના કોલ પર. એટલા માટે થઈને હેવી સેલિંગ અહીં આવતું જોવા મળ્યું. હવે આવી જાઓ બેંક નિફ્ટી પર. બેંક નિફ્ટીમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા બની છે. આપણે તમે જુઓ ડેઇલી ચાર્ટ્સ, પરમ દિવસે આપણે જે છે તે 51,500 ને ઉપર ક્લોઝ આપ્યો. આટલા દિવસથી તમને યાદ જ છે 51,500 આપણે ચર્ચા કરી જ રહ્યા છીએ. 51,500 ને ઉપરનો ક્લોઝ તમને અહીંયા જોવા મળ્યો. પછીના બીજા દિવસે 51,500 નીચે સાઇઝેબલ તમને ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ જોવા મળી હતી અને ત્યાંથી ક્લોઝ પણ તમારું એ રીતે. આજે કોશિશ બેંક નિફ્ટીએ પૂરી કરી 51,500 ને ઉપર જવાની, અને અત્યારે પણ તમે જુઓ તો 51,490 એટલે 500થી તમે થોડા જ દૂર છો. અને જો આજનું ક્લોઝિંગ પર્ટિક્યુલરલી 51,500 અગેઇન આવી જાય છે તો ફરી એકવાર તેજી તરફની કોશિશ જે છે તે હવે અહીંયાથી બેંક નિફ્ટી કરે તેવા પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. એટલે 51,500 પોસિબલ છે કે અહીંયાથી ખાસ એક નવી મૂવ આવતી તમને જોવા મળે. આજનું ક્લોઝ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. તમારા સપોર્ટ ક્યાં છે? આજે 10 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ છે તે છે 51,279. અને તમે જોયું હોય તો આજના તમારા જે ડેઝ લો બન્યા છે તે તમે જુઓ તો તે છે 389. એટલે એક્ઝેક્ટ તમે જુઓ છો તો પોતાના સપોર્ટ એરિયાથી 100 પોઈન્ટ ઉપર જ આવી અને બેંક નિફ્ટી જે છે તે રિકવર થઈ રહ્યું છે. તો આવી સ્થિતિમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર છે બેંક નિફ્ટી, અને હવે કોશિશ કરી રહ્યું છે ઉપર જવા માટેની. બસ હવે સ્થિતિનું નિર્માણ એ થયું છે કે 51,500 જે આપણી એક્સપેક્ટેશન છે તેને ઉપર આજે જો ક્લોઝ આવી ગયું તો બમ્પર તમને તેજી આવતી જોવા મળશે. શુક્રવાર ફ્રી ડે નહીં રહે, ફ્રાઈડે જ રહેશે એવું લાગી રહ્યું છે. તો આવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. 15 મિનિટના ચાર્ટમાં બતાવીએ કઈ રીતે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. નિફ્ટી કરતાં સેટઅપ પણ થોડું બેંક નિફ્ટીનું અલગ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. દિવસની શરૂઆત થઈ તમે જુઓ છો અહીંયાથી પહેલી કેન્ડલ ગેપ અપ તમે ખુલ્યા 51,500 ને ઉપર ખુલ્યા હતા. આજના તમારા હાઈ 51,636ના છે. એક વખત સ્ક્રીન પર લઈ આવીએ આપણે. 51,636ના તમારા હાઈ બન્યા. ત્યારબાદ પ્રોફિટ બુકિંગને કારણે થઈને તમારા ડેઝ લો અત્યારે ફ્રેશ બન્યા છે 389. તો આવી સ્થિતિમાં પોતાના સપોર્ટથી બહુ જ ઉપર છે. અને જે તમે જુઓ છો કે નિફ્ટીમાં એક્સપાયરીને કારણે તમને સેલિંગ આવે છે તેવું બેંક નિફ્ટીમાં નથી. અત્યારે પણ તમે જુઓ તો એ 390 એટલે આ લેવલની આસપાસ તમે કારોબાર કરી રહ્યા છો, બહુ નીચે નથી. તો આ પરિસ્થિતિ અહીંયાથી ખાસ બની રહી છે. નિફ્ટીની એક્સપાયરીને કારણે બેંક નિફ્ટીમાં થોડું ટેન્શન છે, પણ બાકી ઓવરઓલ તમે જુઓ છો તે પ્રમાણે 382 આસપાસના ડેઝ લો અને અત્યારે તો 480 આસપાસ છો તમે. એટલે ફરી એકવાર પછી ઉપરના સરો બનતા તમને અહીંયાથી જોવા મળી રહ્યા છે. આ થાય 480નું લેવલ, એટલે અહીંયાથી પાછા સપોર્ટ લઈ અને ઉપર પણ તમે આવી રહ્યા છો. બસ 500નો ક્લોઝ આજે આ લેવલ પર્ટિક્યુલરલી છે. એક વખત 51,500 જો જળવાઈ જાય આ પર્ટિક્યુલર, તેને ઉપરનો ક્લોઝ તમને મળી જાય તો પર્ટિક્યુલર પરિસ્થિતિ બહુ જ સરસ તેજીની તમને જોવા મળશે. એક વખત આ લેવલ પર્ટિક્યુલરલી 51,500 જે છે અહીંયા લખેલું જ છે, 51,500 જો ક્રોસ થાય તો પછી બાત બનેગી, નહીં તો બાત બિગડેગી. એવી સ્થિતિમાં છીએ, બગડવાના બહુ કંઈ ચાન્સ છે નહીં. બેંક નિફ્ટી સ્ટેબલ છે રિલેટિવલી નિફ્ટી કરતાં. હવે તમે જુઓ છો જે રેન્જ બની છે તે પ્રમાણે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની ખાસ વાત કરી લઈએ. 51,500 મેક ઓર બ્રેક સ્થિતિમાં છે, એટલે અહીંયા કોલ રાઇટર્સ ઊભા જ છે પોતાની પોઝિશન્સ જાળવી રાખીને. ઇન્ટરેસ્ટિંગલી આ વખતે તમે જુઓ તો બેંક નિફ્ટીમાં 40 લાખ પ્લસના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ તમને જો બુધવારની એક્સપાયરી હોય તો મંગળવારે કે સોમવારે આવતા જોવા મળે. આ વખતે ઓલમોસ્ટ 36 લાખના કોલ રાઇટર્સ જે છે તે પહેલેથી જ અહીંયા શુક્રવારે, ગુરુવારે, ઇનફેક્ટ મંગળે નહીં, બુધે નહીં, ગુરુવારે અહીંયા પોઝિશન બનાવીને ઊભા છે. એટલે આ બહુ કોન્ફિડન્સ સાથે એમણે રાઇટિંગ કર્યું હતું. પણ માર્કેટ જે છે બેંક નિફ્ટી વારે આને અપ્રોચ કરી અને આગળ વધવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે, બ્રીચ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. અને ઇનફેક્ટ દિવસમાં 3 વખત સક્સેસ મળી પણ ગયું છે 51,500 ને ઉપર. સો આજનું ક્લોઝ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેશે બેંક નિફ્ટીનું, અને એના કારણે થઈને આપણે ધ્યાન પર રાખી રહ્યા છીએ ઓઆઈ.
સપોર્ટ બીજા ક્યાં છે તમારા? એક તો અહીંયા 51,500 પર બેઝ બિલ્ડ થઈ જ રહ્યો છે, તમે જુઓ સાથે સાથે 51,500 કોલ પુટ બંનેમાં, એટલે મને લાગે છે લોકોએ ઘણું સ્ટ્રેડલ પણ કર્યું હોય એવી પણ પરિસ્થિતિ બની છે. આ તરફ 51,000 પર તમારા માટે સપોર્ટ બની રહ્યા છે. અહીંયા 51,400નું પણ એક થોડું ટેન્શન છે, 51,600માં પણ કોલ રાઇટર્સ છે. તો આ બે પરિસ્થિતિ, 52,000નું અલ્ટિમેટ રેઝિસ્ટન્સ તમારા માટે. ઓઆઈ ચેન્જ બતાવી દઈએ. ઓઆઈ ચેન્જમાં તમને જોવા મળશે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જના હિસાબથી કઈ રીતે આ જુઓ સ્ટ્રાઇક આ છે 51,500, 51,600 કોલ રાઇટર્સે બંનેમાં અગ્રેસિવ પોઝિશન્સ પોતાની એડ કરી છે અને એટલા માટે જ આપણે કહી રહ્યા છીએ કે થોડું ટેન્શન અહીંયા બની જરૂર રહ્યું છે. પણ જો એક વખત આ બ્રીચ કરશે બેંક નિફ્ટી તો પાટિયા પડી ગયા સમજો. તો અહીંયાથી ખાસ પરિસ્થિતિ આગળ તમને 52,000 સીધા લઈ જાય એવી પૂરી શક્યતાઓ બનતી જોવા મળી રહી છે. એટલા માટે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે 51,500નો ક્લોઝ બહુ જરૂરી છે. તો તમે સમજ્યા નિફ્ટી બેંક નિફ્ટી બંનેનું સેટઅપ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. જે પ્રકારની સ્થિતિ બની રહી છે તે. ક્વિક બ્રેકનો સમય. બ્રેક બાદ આપણે એક્સપાયરી સ્પેસિફિક મૂવ્સ પર ચર્ચા કરીશું આપણા એક્સપર્ટ સાથે અને સમજીએ કે બેંક નિફ્ટીમાં જે આ મૂવ બની રહી છે તે કઈ દિશામાં આગળ વધશે. બ્રેક બાદ. તો બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. ભારતીય માર્કેટ્સ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર આવીને ઊભા છે અત્યારે ફિલહાલ, અને જે સેટઅપ બની રહ્યું છે એક્સપાયરીની બસ ઓલમોસ્ટ 19 મિનિટ બાકી છે અને જે પ્રકારે રેન્જમાં છે નિફ્ટી, લાગતું નથી કંઈ ખાસ પરિવર્તન આવે. પણ બેંક નિફ્ટી પર આપણે સૌ કોઈની ખાસ નજર, બીકોઝ 51,500ને લગોલગ અત્યારે ફિલહાલ બેંક નિફ્ટી જોવા મળી રહ્યું છે. આગળ ચર્ચા કરીએ. આપણી સાથે લક્ષ્મીશ્રી ઇન્वेस्टमेंट्स अंशुल जैन जोड़ाए रहा है. अंशुल जी स्वागत. सबसे पहले गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए. डिस्कशन की शुरुआत वहीं से करें. पहले तो टीचर्स डे हैं आज, तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, क्योंकि आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को गाइडेंस दी है. मार्केट भी एक अल्टीमेट टीचर है हम सबका, उनसे भी हम सीखते हैं और आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको. धन्यवाद यशी, नमस्कार आपको, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए. देखिए टीचर्स डे के दिन पे सबसे बड़ा टीचर तो देखिए सबसे पहले बड़ा टीचर होते हैं माँ बाप. उसके बाद जो सबसे बड़ा टीचर मेरा रहा है वो मार्केट रहा है. मार मार के मार्केट ने सिखाया है कि लॉस जल्दी से बुक करना सीखो, प्रॉफिट अपने आप मार्केट दे देगा. बहुत बढ़िया बढ़िया आपने सीख भी दी है आज के दिन, तो उसके लिए भी शुक्रिया सर. निफ्टी की एक्सपायरी के ऊपर सबसे पहले नज़र डालें. आज 25,200 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स जो आते हुए दिखे हैं और सिमिलर स्टोरी 51,500 पे बैंक निफ्टी पे, क्योंकि आइडियली आप देखें इतना ओआई जो है वो एक्सपायरी के एक दिन पहले होता है बैंक निफ्टी में, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट आते हुए देखने मिले हैं, वो भी सितंबर की पहली एक्सपायरी के दूसरे हफ्ते में बैंक निफ्टी में पर्टिकुलर, और निफ्टी में भी आज काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है. थोड़ा सा समझाइए सर किस दिशा में जा रहे हैं आप? देखिए यहाँ से अगले 1 से 1.5 हफ्ते मुझे लगता है कि मार्केट में ऑप्शन सेलर का मार्केट ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जुलाई का हाई आप निफ्टी पे देखें तो 24,999.75 है, यानी 25,000, और अगस्त का हाई है 25,265. कल के गैप डाउन में हमने लोअर एंड प्रोटेक्ट किया है, आज के गैप अप में अपर एंड को रिजेक्ट किया है. तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि यहाँ से रेंज बाउंड होने वाला है मार्केट. 25,000 से 25,265 के बीच में काफ़ी हद तक रेंज बाउंड रहेगा. तो आप जैसे जैसे 1-2 हफ्ते निकलते देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपरी स्तर पे 25,250, 25,300 के आसपास कॉल राइटर्स हावी रहेंगे और 25,000 उससे नीचे पुट राइटर्स हावी रहेंगे, और इसी रेंज के अंदर हम प्रोबेबली 1 से 2 हफ्ते टाइम स्पेंड करते हुए दिखेंगे. ये कंसोलिडेशन बहुत हेल्दी कंसोलिडेशन होगा. नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के लिए पोजीशंस जो है वो न्यूट्रलाइज होती हुई दिखेंगी, क्योंकि एफआईआई की इंडेक्स पोजीशन देखें तो थोड़ी सी हेवियर नोट पे आ चुकी हैं. 96,000 नेट बेसिस पे है, लगभग 2-2.25 लाख फ्यूचर्स के बेसिस पे है, और आज की एक्सपायरी निकलने के बाद कुछ हद तक ये डेटा एडजस्ट होता हुआ दिखेगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1-1.5 हफ्ते हम बहुत हद तक मार्केट में साइडवेज रहने वाले हैं, जहां पे लार्ज कैप स्टॉक्स में जहां आउट परफॉर्मेंस है वहां पे क्लियरली फ्रेश बाइंग देखने के लिए मिलेगी. मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ हद तक करेक्शन आता हुआ दिखेगा. सेलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स जो अल्फा जनरेट कर रहे हैं उनमें बाइंग कंटिन्यू रहेगी, लेकिन वीकर नोट पे जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वहां पे बहुत तेज पिटाई होती हुई दिखेगी. तो अगर आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप है तो आप वीकर नोट पे हैं तो आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए. अगर स्ट्रॉन्गर नोट पे हैं तो कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं. एक सिंपल सा स्टॉप लॉस दे देता हूँ ब्रॉडर स्पेस में. मिड कैप स्मॉल कैप में 20 डे मूविंग एवरेज, जो भी स्टॉक आपके पास है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर क्लियरली उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ब्रेथ भी एक्सटेंडेड है,
फ्यूचर एंड ऑप्शन में एफआईआई की डेटा भी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, एटलीस्ट ऑन द फ्यूचर साइड। तो यहाँ से कंसोलिडेशन हाई लाइकली है, ऑप्शन सेलर का मार्केट होने वाला है। ठीक है सर, ऑप्शन सेलर्स का मार्केट यहाँ से रहेगा। वॉलेटिलिटी भी हो सकती है क्योंकि अब सेलिंग जो होती है उसमें एक साथ जब कवरिंग होती है तो इस टाइम पे मूव भी आती है बहुत ज़्यादा। तो देखें, इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। सर, रिलायंस की अनाउंसमेंट आती हुई देखने मिल रही है। फाइनली जो वो एंटिसिपेशन था न्यूज़ का वो आ चुका है। 1:1 बोनस को मंजूरी बोर्ड से मिल चुकी है। पर देखने वाली बात यह है कि अभी तक रिकॉर्ड डेट या ये कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जस्ट इतनी सी इंफॉर्मेशन सामने आई है कि बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस 1:1 बोनस के जो डिसीजन है उसको बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल गई है। सो रिकॉर्ड डेट तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी 3,000 के नीचे है सर। सो जब भी एक बार प्राइस डिसाइड होगा 1:1 यानी कि ऑलमोस्ट 1500 1480 के आसपास का प्राइस हो जाएगा बोनस के बाद। तो समझना होगा सर, चार्ट्स एडजस्ट होने के बाद कैसे देखेंगे आप रिलायंस को? देखिए, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और ऑलमोस्ट 60% पोर्टफोलियो रिलायंस से भरा पड़ा है। तो मैं बाई सेल पे तो बहुत ज़्यादा कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। एक थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मूव रहा है, उसके बाद अप ट्रेंड आया है। प्रीवियस स्विंग हाई 3040 के आसपास रहा है, पिछले 6 दिन से उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। आज थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद सेलिंग आई है, बट इवेंचुअली ये एब्जॉर्ब होती हुई दिखेगी। स्ट्रक्चरल बुल रन में है स्टॉक, तो तेजी बनी रहेगी। मंथली चार्ट पर हैमर था। प्रोबेबली सितंबर का महीना हम साइडवेज स्पेंड कर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में ब्रेकआउट आए, बट स्ट्रक्चरल तेजी जो थी वो बनी हुई है, किसी भी तरह का पैटर्न में ब्रेकडाउन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म जो होल्डर्स हैं उनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों काफ़ी हद तक साइडवेज और शांत वाली कैटेगरी में है, तो ट्रेडर्स को अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक अच्छा लग रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, 60% रिलायंस मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस है। ठीक है सर, नजर रखेंगे। રિલાયન્સની આપણે વાત કરી, એક પર એક બોનસની અનાઉન્સમેન્ટ જે આજે આવવાની હતી તે ફાઇનલી બોર્ડે મંજૂરી આપી દીધી છે, પણ તકલીફ અહીં એ છે કે હજુ પણ रिकॉर्ड डेट, सर रिकॉर्ड डेट अभी तक सामने नहीं आया है। कुछ पता चले उससे किसको पोर्टफोलियो में रखना, प्रॉफिट बुक करना है तो करे, लेकिन अब तक वो न्यूज़ नहीं आई है। पता नहीं क्यों थोड़ा सा डिले है उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक सर मैं डिस्कस करना चाहूँगा और वो है आज के इंडेक्स, और वो है स्मॉल कैप सर। बहुत ही अमेजिंग मोमेंटम में है ये सेक्टर, पर्टिकुलरली अपना इंडेक्स स्मॉल कैप आप देखें तो। और मिड कैप ने भी काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी के मूव को। जैसे आप एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि ऑप्शन सेलर्स का मार्केट रहेगा, तो जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स नहीं आते हैं जैसे कि स्मॉल कैप हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा सर मार्केट का। आज तो बहुत ही ज़्यादा मूव देखने मिली है सर स्मॉल कैप में। और मिड कैप के चार्ट्स भी एक बार देखें सर, थोड़ा समझाइए हमें। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप अगर इंडेक्स देखें तो वहां पे कंसोलिडेशन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन का सेलेक्टिव काउंटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जहां पे जैसे ब्रोकिंग स्टॉक्स हो गए, कुछ हद तक बाकी स्टॉक्स हैं जहां पे आउट परफॉर्मेंस है जो मार्केट के अगेंस्ट लीडर है। अगर मार्केट 1-1.5% चलता है, स्टॉक 5-6% चलते हैं, उस काइंड ऑफ कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वहां पे बहुत बेहतरीन अप मूव आ रही है। हमने कोपरान हो गया, AFL सिक्योरिटीज हो गया, एडलवाइस हो गया, ये अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए। तो जहां पे क्लियर कट आप इंडेक्स में देखने जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सेलेक्ट काउंटर्स देखिए जहां पे आउट परफॉर्मेंस है, मार्केट के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वहां पे मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। जहां पे बड़े बेस ब्रेकआउट है वहां पे स्टॉक अच्छा करते हुए दिखेंगे। तो कुछ रैडिको हो गया या इस टाइप के शेयर हो गए, वहां पे इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे तो हर ब्रेकआउट प्ले करने में आपको अप मूव अच्छी मिल जाएगी। ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू मूव काफी अच्छा मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि अलग सेलेक्ट अगर काउंटर्स, अगर चूंकि ये ब्रॉडर बात हो जाती है सेलेक्ट काउंटर्स, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है कि इंडेक्स के रिटर्न्स के मुकाबले इनने पिछले 3 महीने में रिटर्न्स ज्यादा दिए हों और स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। ये ब्रॉडली एक सेलेक्ट का क्राइटेरिया होता है। इसके अंदर अगर आपका स्टॉक आता है तो फिर ड्यू डिलीजेंस कीजिए और ब्रेकआउट्स प्ले कीजिए। इन स्टॉक्स में अप मूव बना रहेगा, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स जो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं
उनमें थोड़ी सी पिटाई होती हुई दिखेगी। तो ये एक फिल्टर मैं आपको दे दे रहा हूँ। अगर आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप है तो उसमें 20 डे मूविंग एवरेज लगा के देखिए, स्टॉक अगर उसके ऊपर है तो क्लोजिंग बेसिस पे उसी को स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर उसके नीचे है तो इमीडिएटली एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इंडेक्स में अगर 200-250 पॉइंट की भी डाउन मूव आती है निफ्टी में, जो पुल बैक के लिए बहुत जरूरी है, तो मिड कैप स्मॉल कैप वीकर काउंटर्स में 20-30% का करेक्शन आता हुआ दिखेगा, जो अगेन रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड करना चाहिए आउट परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स। डेफिनेटली बहुत अच्छे से सर आपने समझाया इस सिचुएशन को, और एक जो बेंचमार्क सेट किया है आपने वो भी आई होप कि दर्शकों को समझ आ जाए और उसके ऊपर वो वॉकआउट करें। सर आज के रिकमेंडेशंस आपके जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जब मार्केट की मूव आप एंटिसिपेट कर रहे हैं थोड़ा साइडवेज जाए, सेलर्स की मार्केट रहेगी, तो ऐसे टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा सर। देखिए, दो रिकमेंडेशन रहेंगे मेरी तरफ से। अगेन जो मैंने कहा आउट परफॉर्मेंस, उसी में से स्टॉक लेके आया हूँ। पहला स्टॉक है रेडिको खेतान। अगर आप चार्ट लगा के अपने दर्शक को दिखाएंगे तो 37 वीक्स का बेस ब्रेकआउट आया था स्टॉक में 1880 रुपए में। फिलहाल थोड़ा सा एक्सटेंडेड है और पुल बैक में करेक्शन ले रहा है, तो स्टॉक को 2000 रुपए में 1990 के आसपास बाई करना चाहिए। थोड़ा डिप में 1950 के आसपास मिलता है तो ऐड कर सकते हैं। 1950 मेजर सपोर्ट है, लग नहीं रहा है वो टूटेगा, तो 1950 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 2200 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में और अपसाइड बनती हुई दिखेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा अरिहंत कैपिटल का। अरिहंत कैपिटल में भी बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है डेली चार्ट पे, उसके बाद थोड़ी सी मूव एक्सटेंड हुई थी और अब कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो एक छोटा सा कप कैंडल बना है। 103 रुपए के ऊपर स्टॉक को बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका जो बनेगा वो 90 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा और ऊपर में टारगेट 125 से 130 रुपए बनेंगे। तो अरिहंत कैपिटल 103 रुपए के ब्रेकआउट पे बाई करना है, 90 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 125 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। 125 रुपए के टारगेट के साथ अरिहंत कैपिटल और साथ ही साथ रेडिको, दोनों स्टॉक्स के ऊपर फोकस हमारा बना रहेगा। तो आप 2 काउंटर्स છે રેડિકો ખેતાન એક વખત તમારા સ્ક્રીન પર અરિયન કેપિટલ બંને પર નજર રાખો। सर अभी हमने डिस्कस किए हैं वो है स्मॉल कैप, तो केसी इंटरनेशनल के साथ ही हमने डिस्कशन शुरू करनी चाहिए, बिकॉज अमेजिंग मूव 1000 को अप्रोच कर रहा है सर धीरे धीरे स्टॉक, और 993 के अराउंड है अभी फ़िलहाल। बहुत ही बढ़िया मूव देखने मिली है केसी इंटरनेशनल सर। और देखिए, केसी इंटरनेशनल डेली चार्ट पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है। मैं या तो 1000 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे, मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी इस पे अपनी बात हुई थी, या तो 1000 रुपए के ऊपर सस्टेन करे तो इसमें फ्रेश बाइंग बनेगी, या ऑन द डिप्स नीचे में कहीं भी 963 के आसपास मिले तो बाइंग बनेगी। तो लास्ट वीक अगर जिसने शो देखा था और नोटिस किया था 965 970 के अराउंड उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है, 1000 रुपए आ चुका है। अब यहाँ से स्टॉक 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। ऊपर में 1040 1050 का पहला टारगेट रहेगा और 1100 रुपए अगला टारगेट रहेगा। तो स्टॉक हमको काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन 1000 के ऊपर अब फ्रेश बाइंग करना चाहिए, या फिर 960 970 की जोन में डिप मिलती है तो बाइंग बनेगी। सेम लास्ट वीक की सलाह रिपीट करूंगा, मेरा इंक्लिनेशन ब्रेकआउट की तरफ ज्यादा है। 1000 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा फ्रेश बाइंग में। ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે કેસી ઇન્ટરનેશનલ આ પ્રમાણે એક્શનમાં અત્યારે ફિલહાલ સ્ટોક છે, નજર રાખવાની રહેશે। आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक मैं ध्यान में आपको दिलाना चाहूँगा और वो है केमिकल के साथ जुड़ा हुआ ये स्टॉक का, जहाँ पे DCW, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने मिला है और 1 महीने में आप देखें ऑलमोस्ट 45% DCW बढ़ चुका है। अब आज समाचार ये जो हम दिखा रहे हैं बैरून कैपिटल की तरफ से 88.66 पर शेयर के प्राइस पे उन्होंने एक जो हिस्सा है वो उठाया है और इस वजह से DCW आज न्यूज़ में रहा और काफ़ी ज़्यादा एक्शन में ये स्टॉक आज के दिन में भी 6% से ज़्यादा की मूव देखने मिली है। सर आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स को? देखिए यश, इसमें ब्रेकआउट आया था एट द रेट ऑफ 85, जहां से 3 बेसिस कंप्लीट करके स्टॉक 96 पे टॉप आउट हुआ और अभी करेक्शन आ रहा है। तो सिमिलर सुजलॉन टाइप का पैटर्न है, नीचे में 90 रुपए से लेके 89 के बीच में ये स्टॉक रिट्रेस कर सकता है। उस जोन में अगर आता है तो फिर स्टॉक में फ्रेश बाइंग की जानी चाहिए। फिलहाल के लिए नया बेस बनाने के लिए स्टॉक जा रहा है तो 4 से 6 हफ्ते बेस बनाने में समय जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। एक बार बेस कंप्लीट होके ब्रेकआउट देगा तब फ्रेश लॉन्ग्स बनेंगे, फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी। क्लियर।
અવોર્ડનો વ્યૂ DCW માટે બનતો જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રાખીશું। अंशुल, अब निफ्टी फार्मा पे एक नज़र डालिए अब, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स हैं जो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बजिंग है और आज आप देखें तो हेल्थ केयर, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स में मूव आती हुई देखने मिल रही है और ऊपर से डिफेंसिव भी हैं। तो ऐसे देखने जाएं तो भी सीज़न में रहेंगे, क्योंकि पिरामल हो गया, बाकी सारे स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा आज एक्शन देखने मिला है, पिरामल, फार्मा इनफैक्ट। तो पहले तो इंडेक्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी फार्मा की, और एक स्टॉक फार्मा कंपनीज में से जो आपको पसंद हो अभी फिलहाल। देखिए यश, आपको याद होगा कि जून में मल्टीपल टाइम्स मैंने कहा था कि 4 महीने का मंथली चार्ट पे 4 टाइट मंथ्स की क्लोजिंग है जहां से ब्रेकआउट आया है और अगले 3 महीने ये इंडेक्स आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, कपल्ड विद आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स ने ज्यादा अच्छी तेजी दिखाई है, इसने थोड़ी कम तेजी दिखाई है, लेकिन कंटिन्यूअसली 3 महीने अपमूव के साथ रहा है, तो 3 महीने की अपमूव हो गई है। प्रोबेबली सितंबर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट इवेंचुअली अभी भी 19,500 से जो ब्रेकआउट आया था उसका टारगेट 25,000 था और हम केवल 23,000 पे खड़े हैं, तो 2,000 पॉइंट की और अपमूव यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। फार्मा स्टॉक में एक सिंजीन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आज के सेशन में मूव भी काफी अच्छी है, डाउन मूव को कंप्लीट किया है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन है, यहाँ से एक और डाउन डे मिल जाता है 899 के अराउंड, 890 899 की जोन में, तो स्टॉक में अच्छी अपमूव बन जाएगी। लोअर वॉल्यूम्स पे स्टॉक करेक्ट हो रहा है, तो इसको बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट मानना चाहिए। लेकिन जो टॉप पिक हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं वो है लॉरस लैब। लॉरस लैब में बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है, समवेयर अराउंड 483 पे ब्रेकआउट था, तो इस स्टॉक को लॉन्ग करके चलते हैं तो 540 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। आउट ऑफ द टू मुझे लॉरस लैब ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप कहेंगे कि एक ही काउंटर सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं लॉरस लैब एनी डे सेलेक्ट करूंगा 540 के टारगेट के साथ। बिल्कुल, लॉरस लैब्स पसंद આવી રહ્યું છે, બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, આગળ જતાં તમને સારો ફાયદો પાવશે, તો સલાહ બની રહી છે, નજર રાખવાની રહેશે। ओके, आगे बढ़ते हैं और मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि जो न्यूज़ आई है पर्टिकुलरली वो यूनिवर्सल बैंक बनने जा रहे हैं बहुत जल्द, और जो स्मॉल फाइनेंस उनके नाम से हट जाएगा। गोल्डमैन सैश की ओर से भी एक बाय रेटिंग आज आई है और 20% ऊपर के टारगेट उन्होंने दिए और स्टॉक आज 2% कुछ ऊपर था। ईपीएस ग्रोथ और आरओए में इंप्रूवमेंट की आशाएं गोल्डमैन सैश ने जताई हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बहुत जल्द एयू बैंक बन जाएगा सर? देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 45 दिन के पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट था 695 पे। ये स्टॉक मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में थी और आज जिस हिसाब से ब्रेकआउट बना था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी मूव देगा, लेकिन एंड होते होते डोजी कैंडल के साथ क्लोजिंग हो रही है, तो डोजी कैंडल के साथ जब भी क्लोज होता है स्टॉक तो मेरी डाउट्स बहुत बढ़ जाते हैं कि ये स्टॉक अपना ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं, तो मैं अगले 3 से 5 दिन इसको अवॉइड करूंगा। अगर ये 695 के ऊपर सस्टेन कर जाता है स्टॉक तो फिर मेरे लिए वापस बाय लिस्ट में आएगा और ऊपर 740 745 तक का टारगेट बनेगा। बट जिस हिसाब से डोजी के साथ क्लोज कर रहा है मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहूंगा फ्रेश बाइंग के लिए, 3 से 5 दिन वेट करूंगा, उसके बाद में वापस से इस स्टॉक को देखूंगा कि अगर सस्टेन करता है तो बाइंग इंटरेस्ट रहेगा। ओके, सो इस हिसाब से व्यू बनता हुआ देखने मिल रहा है। इंटरेस्टिंग है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नज़र हमारी बनी हुई रहेगी इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट स्टॉक आप देखें कैप्लिन पॉइंट पर आज हमारी नज़र थी, क्योंकि अब 10% अप रह गया स्टॉक और 52 वीक हाई बन गया आज स्टॉक में। 14 लाख से प्लस के वॉल्यूम्स भी हुए हैं और एक महीने में आप देखें तो इस स्टॉक ने 40% से ज़्यादा की छलांग भी लगाई है। तो ऐसे सिचुएशन में कैप्लिन पॉइंट जो मूव दिखा रहा है उसे आप कैसे देखेंगे सर? देखिए यश, ये आपको याद होगा कैप्लिन पॉइंट हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तब स्टॉक में ब्रेकआउट बन रहा था लगभग 1600 रुपए के आसपास। वहां से हमारा डिस्कशन हुआ था कि 2300 रुपए तक ये अपमूव जाएगी। इतने शॉर्ट टर्म में इतने शार्पली आ जाएगी मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे हिसाब से दिवाली तक इसको 2300 रुपए आना चाहिए था, लेकिन मूव शॉर्ट टर्म में काफी शार्प है। डेली चार्ट पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, फ्रेश बाइंग के लिहाज से अब लेट हो चुके हैं। 1600 रुपए पे अगर किसी ने इस शो को देखते हुए बाई किया था तो वो होल्ड कर सकते हैं 2000 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से। 2300 रुपए का टारगेट रहेगा, वहां पे पूरी तरीके से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड हो जाएगा, फिर बेस बनाने जाएगा, नेक्स्ट बेस के बाद नेक्स्ट बाइंग बनेगी। फिलहाल 2300 आता है तो बुक कर लेना चाहिए। 2300 आसपास प्रॉफिट बुक કરી લેવાની સલાહ તમને અહીંયાથી ખાસ બનતી જોવા મળશે। નજર રાખીએ, આ છે કેપ્લિન પોઈન્ટ।
આગળ વધીએ ભારતીય માર્કેટ્સના ક્લોઝ પર એક વખત નજર કરી લઈએ. જોવા મળી રહ્યું છે આપણને ક્લોઝ લાલ નિશાનમાં મામૂલી એવા 25,150 આસપાસ ક્લોઝ થવા જઈ રહ્યો છે. નિફ્ટી એડજસ્ટ થઈ જવા દઈએ. બેંક નિફ્ટી સરસ લીલા નિશાનમાં 51,450. આપણી આશા હતી 51,500 ઉપરની, થયું નથી સો ફાર, પણ કંઈ વાંધો નહીં. અત્યારે ફિલહાલ આ એક પરિસ્થિતિ. વિક્સ ફાઇનલી ઘટ્યો છે, આ એક સારી વાત ગણાશે. ગઈકાલે જે વિક્સ વધ્યો હતો, જે રીતે થોડું ટેન્શન અપાવતો હતો. ટોપ ગેનર્સમાં છે ટાઇટન, LTI, માઇન્ડટ્રી, વિપ્રો, BPCL, આ બધા જ સ્ટોક્સ. ટોપ લૂઝર્સમાં સિપ્લા જોવા મળશે તમને, કોલ ઇન્ડિયા છે, રિલાયન્સ છે, આ બધા જ ટોપ લૂઝર્સ આજના. બજાજ ઓટો, નેસ્લે, આ બધાએ ખાસ HDFC લાઈફ છે એને પણ થોડું દબાણ જરૂર આપ્યું છે. એટલા માટે થઈને આ પરિસ્થિતિ. ICICI બેંક ફ્લેટ જઈ રહ્યો છે અને સાથે સાથે HDFC બેંક પણ ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ, ICICI બેંક ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ. તો ક્લોઝ થઈ રહ્યા છીએ આપણે પ્રોવિઝનલી 141 પર છીએ અત્યારે ફિલહાલ. જોઈએ પછી આગળ શું થાય છે. 25,144 આસપાસ છીએ અને 51,458 આસપાસ તમને જોવા મળી રહ્યું છે બેંક નિફ્ટીનું ક્લોઝ. મિડ કેપ તમે જોઈ લો, 59,431 પર અહીંયા તમને પ્રોવિઝનલ ક્લોઝ જોવા મળશે. સ્મોલ કેપમાં તમને 1.8% આસપાસ મજબૂતી સાથે 19,500 ઉપર આ બહુ જ સરસ ક્લોઝ છે ઇનફેક્ટ સ્મોલ કેપનું. અને જે પ્રકારે એક્શન જોવા મળ્યું છે, સતત ઇન્ડેક્સ જે છે તે ચાલ્યો છે. ગઈકાલના 322ના ક્લોઝ સામે આજે 200 પોઈન્ટ વધીને જઈ રહ્યા છે સ્મોલ કેપમાં. સો આજના દિવસનો હીરો ડેફિનેટલી સ્મોલ કેપ રહ્યો, મિડ કેપ રહ્યો. મિડ કેપમાં પણ થોડી મજબૂતીના સંકેત સાથે 59,431નું ક્લોઝ તમને જોવા મળ્યું. સેક્ટર્સ કયા ચાલ્યા આજે? સ્મોલ કેપ તો છે, મીડિયા, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, બહુ જ સરસ ખરીદદારી તમને અહીંયા જોવા મળી. IT સેક્ટરમાં સરસ ખરીદદારી જોવા મળી. PSU બેંક્સ છે. વેચવાલી ક્યાં હતી? CPSE, રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોક્સ, એનર્જી અને ઇન્ફ્રા, આ જ સેક્ટર્સ છે બધા કે જેમાં તમને મંદીનું ગ્રહણ આજના દિવસે જોવા મળ્યું. એટલે વેચવાલીવાળા ઘણા સેક્ટર્સ હતા, એવું નથી કે નથી, તે વાત તો આપણને સ્પષ્ટ સમજવા મળે જ છે. તો આપણે વાત કરી લઈએ. અંશુલજી, पहले तो एक क्विक रिएक्शन आज के क्लोज पर. कोई डिससेटिस्फैक्शन आपको? लेवल्स पर्टिकुलरली 51,500 मेंटेन नहीं कर पाया है क्लोजिंग बेसिस पर फिर से एक बार बैंक निफ्टी. और निफ्टी कल के क्लोज के सामने कुछ 50 पॉइंट और आज कमजोरी हमने दिखाई है. देखिए 51,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो मैं काफी कंफर्टेबल होता. खैर 2 दिन से हम सस्टेन कर रहे हैं उसी के आसपास. जितने भी एग्रेसिव शॉट लिया है अंडर वाटर है और 1 से 2 दिन में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी. तो 51,500 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, बैंक निफ्टी ड्राइविंग सीट में आएगी, लीडरशिप पोजीशन लेगी और 53,000 या ऑल टाइम हाई तक के मूव्स देखने के लिए मिलेंगे. तो मैं यहाँ से काफी हद तक बुलिश हूँ बैंक निफ्टी पे. मुझे बैंक निफ्टी में काफी अच्छी तेजी दिख रही है 53,000 तक, और अब बैंक निफ्टी लीडरशिप लेती हुई दिखेगी. तो निफ्टी कंसोलिडेशन में जाएगा और बैंक निफ्टी लीड लेती हुई दिखेगी. તો ફોકસ જે છે તે હવે બેંક નિફ્ટી પર હોવું જોઈએ. નિફ્ટી થોડી બ્રેક લગાવશે એવું આપણને લાગી રહ્યું છે. સર, मैं सेक्टर्स आज के देख रहा हूँ, वर्स्ट परफॉर्मेंस जो आज देखने मिला है वो रियल एस्टेट में है. और 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि रियल एस्टेट इंडेक्स में दिन की शुरुआत में इंट्राडे हाई बन जाता है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है. एक तरफ आप देखें तो हम फेस्टिवल सीजन में जा रहे हैं, लोग जो शॉपिंग वगैरह करनी होती है रियल एस्टेट की वो सब करते हैं. चाहे कोई भी प्रकार की शॉपिंग है वो कंजम्पशन होने वाला है. और दूसरी तरफ आप देखें तो रियल एस्टेट स्टॉक में बार बार ऐसा हो रहा है कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली जो है वो जल्द आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग जल्द आ जाती है. ये समझाइए सर थोड़ा. देखिए रियलिटी इंडेक्स देखें तो एक बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है. लास्ट टाइम भी जब हमारा डिस्कशन हुआ था तब मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि इसमें 212% की इंडेक्स में रैली रही है 68 वीक्स में. तो अब कंसोलिडेशन के लिए इसको कम से कम 1 साल का समय चाहिए. इंडिविजुअली कोई स्टॉक मेरे को, अगर इकलौता स्टॉक जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो है ओबराय रियलिटी. यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो एक बार के लिए ओबराय रियलिटी में आप फ्रेश बाइंग देख सकते हैं. लेकिन एज एन इंडेक्स पूरा सेक्टर टेलविंड नहीं है तो इकलौता स्टॉक्स कितना चल सकता है कहना मुश्किल है. तो अगर रियलिटी में रहना ही है तो ओबराय रियलिटी ठीक लग रहा है. बट मेरी सजेशन है कि रियलिटी स्पेस में काफी अच्छी रनअप रही है और बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है. तो अगले 1 साल के लिए स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे. मार्केट को फ्रेश लीडरशिप जो ले रही है वो IT ने लिया है, पीछे से फार्मा लेना स्टार्ट कर रहा है, कुछ हद तक FMCG ले रहा है. तो इन सेक्टर्स में अगर फ्रेश बाइंग देखेंगे तो अगले 3 से 6 महीने में कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा होता हुआ दिखेगा कंपेयर टू रियलिटी जो प्रीवियस विनर रहा है और अब कंसोलिडेशन में जा रहा है. ठीक है सर.
इसके ऊपर निफ्टी रियल्टी पर हमारी ऐसे ही नज़र बनी रहेगी जो प्रॉफिट बुकिंग आज आई है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दूसरी तरफ आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा बजिंग हैं आजकल। आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में शॉपिंग भी होती हुई देखने मिल रही है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो पर्टिकुलरली हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग शायद शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, इस वजह से भी मजबूती देखने मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स आप देखें पहले तो 0.5% अप है, कंजम्पशन की थीम के हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन आपको लग रहा है कोई इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस? बिकॉज आइडियली देखें तो इनमें से बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो सीजन में नहीं है अभी, तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग, शार्प प्रॉफिट बुकिंग का एक रिस्क जरूर रह सकता है सर। देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को देखें तो थोड़ा सा पैटर्न और स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिख रहा है, और कंजम्पशन इंडेक्स भी देखेंगे तो वहां पे भी पैटर्न काफी अच्छा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 8 दिन का फ्लैगिश पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो इस सेक्टर में थोड़ी सी तेजी डेवलप हो सकती है, बट लेट स्टेज है, तो लेट स्टेज में आपको जनरली यहाँ पे थोड़ा सा अगर जिसको हम कहते हैं कॉशियसली अप्रोच करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरी बहुत ज्यादा फ्रेश सलाह नहीं है, क्योंकि किसी भी ऐसे स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, सारे एक्सटेंडेड मूव्स हैं और वहां पे मोमेंटम कैच करना या उसको चेस करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो इस सेक्टर में मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी, फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास होल्ड है तो एक लास्ट में ब्लो ऑफ मूव आ सकता है, स्टॉप लॉसेस लगा के इंडिविजुअल स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। इंडेक्स पे अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 41,000, इसके नीचे इंडेक्स वीक होगा तब स्टॉक्स भी वीक होना स्टार्ट होंगे। तो इंडेक्स पे 41,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 43,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन उस जगह जाके एक्सटेंडेड हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी हाई है। इस तरीके से समझिए कि ऊपर जाने के लिए 5% है, नीचे आने के लिए 12-13% है, तो रिस्क रिवॉर्ड ऑफ फ्रेश लॉन्ग्स के लिए मैच नहीं करता है इस सेक्टर में। रिस्क रिवॉर्ड नो थोड़ो प्रॉब्लम है यहाँ पर्टिकुलरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। लेकिन आज आप देखें तो सर ज़्यादातर तेज़ी जो है वो गोल्ड के साथ जुड़े हुए स्टॉक्स में देखने मिली। टाइटन है, राजेश एक्सपोर्ट हैं, वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो गोल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। गोल्ड के प्राइसेस भी आज कुछ ज़्यादा बढ़े थे, ऑब्वियसली फेस्टिवल सीजन वगैरह ये हो गया, तो ये थीम थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड के साथ जुड़े हुए स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? जूलर्स वगैरह हो गए या राजेश एक्सपोर्ट भी ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में आता है, तो ये हमें समझाइए सर। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट में तो कंप्लीट डाउन ट्रेंड था, तो मैं अवॉइड लिस्ट में डालूंगा। एक लार्ज कैप स्टॉक आपको बताता हूँ, पहला है टाइटन। 92 डेज का बेस ब्रेकआउट आया है, तो इस स्टॉक में बहुत आराम से 3870 तक की तेजी डेवलप हो सकती है। इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 3600 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, तो 100 रुपए की रिस्क है, ऊपर में 200 से 250 रुपए की अपमूव मिल सकती है। जो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ज्यादा रिकमेंड करते हैं, हमने अपने क्लाइंट्स को राधिका ज्वेल टेक सजेस्ट किया हुआ है। इस स्टॉक में पहले भी आपके चैनल पर डिस्कस हुआ था 77 के अराउंड, और अब स्टॉक 112 आ गया है। हम फ्रेश बाइंग यहाँ से भी रिकमेंड कर रहे हैं, ऊपर में 145 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस स्पेस में रहना है तो प्रीवियस विनर्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे TPZ हो गया, PC ज्वेलर हो गया या कल्याण ज्वेलर्स हो गया, ये थोड़े से एक्सटेंडेड लग रहे हैं। लेकिन टाइटन में फ्रेश ब्रेकआउट आया है और राधिका ज्वेल टेक में भी फ्रेश ब्रेकआउट है, तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के लिहाज से ये दो स्टॉक हमको काफी अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे फर्दर अपमूव मिल सकती है। ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે। આ બધા જ કાઉન્ટર્સ તમે ધ્યાન પર રાખી શકો છો। જ્વેલરી સાથે જોડાયેલા સ્ટોક્સમાં एक्शन। सर आगे बढ़ते हैं, ट्रैवल टूरिज्म के ऊपर ही फोकस करते हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, वेकेशंस वगैरह हैं। इंडिगो आज फोकस में था, पर्टिकुलरली जो है वो येफ्रीज की ओर से एक थोड़ा सा बाय रेटिंग दी गई है। अच्छा, ये इंडिगो वो इंटरग्लोब एविएशन नहीं है, ये इंडिगो पेंट्स हैं सर, तो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर स्टॉक में। येफ्रीज की ओर से बाय रेटिंग है और उन्होंने 5225 रुपीज़ के कुछ टारगेट्स दिए हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो कम हुए, इस वजह से पेंट कंपनियों में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसके ऊपर फोकस रहेगा, इसके ऊपर हमारी नज़र है। तो सर इंटरग्लोब एविएशन की भी बात कर लेते हैं और इंडिगो पेंट की भी बात कर लें, क्योंकि दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जो कि क्रूड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सर। देखिए, इंडिगो पेंट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 120 हफ्ते का बीसीपी है, तो ब्रेकआउट बनेगा, उसके बाद टारगेट 1900 के रहेंगे। लेकिन सर मैं फिर से आऊंगा आपके पास, क्योंकि थोड़ा सा शायद ऑडियो मुझे आपका ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मैं फिर से एक बार आता हूँ। ત્યાં સુધીમાં આપણે એક વિરામ લઈ લઈએ દર્શક મિત્રો, એક બ્રેક લઈશું અને બ્રેક બાદ ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન અને ઇન્ડિગો પેન્ટ્સ બંનેની આપણે વાત કરીએ બ્રેક બાદ।
બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. ભારતીય માર્કેટ્સના ક્લોઝ બાદ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. સેટલ થયા બાદ તમે જુઓ છો નિફ્ટીમાં પર્ટિક્યુલરલી જે એક્શન આવતું જોવા મળ્યું તે તમને જોવા મળે છે 25,145, એકદમ ફ્લેટ ક્લોઝ છે. 53 પોઈન્ટનો ઘટાડો છે આજે 5% આસપાસ. બેંક નિફ્ટી 51,500 ઉપર ક્લોઝ આપવામાં સફળતા તો નથી મળી, પણ 51,473નું સેટલ થયેલું ક્લોઝ ચલો કોઈ નહીં, એક વખત સેટિસ્ફैक्टरी जरूर लग रही है. अंशुल जी आपके पास आते हैं. ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे इंडिगो और इंटरग्लोब एविएशन दोनों की, इंडिगो पेंट और इंटरग्लोब एविएशन दोनों के ऊपर फोकस है सर. जी ये मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज़ तो आ रही है, लेकिन सर अभी भी थोड़ा ब्रेक है. आप एक बार आप शुरू तो कीजिए, हम देखते हैं कैसे इसको मेंटेन करें. जी 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 सर मैं कोशिश करूंगा आपसे फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार अभी थोड़ा सा इश्यू है. तो ત્યાં સુધી જુઓ દર્શક મિત્રો, ક્રૂડના ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે અને ક્રૂડ ઓઇલમાં પાછલા થોડા સમયમાં જે રીતનો સતત ઘટાડો તમને આવતો જોવા મળી રહ્યો છે, એના કારણે થઈને પેઇન્ટ કંપનીઓમાં સતત ફાયદો છે. પછી તમે જોશો કે અહીંયાથી ખાસ તમને સતત ફાયદો આવતો જોવા મળી રહ્યો છે તે છે આ એવિએશન કંપનીઓ, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ, કેમ કે આ બધાને તેનો સીધો ફાયદો આવતો જોવા મળી રહ્યું છે. નો ડાઉટ આપણે તો હજુ પણ 94-95 રૂપિયા પર જ પેટ્રોલ અને ડીઝલનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ, પણ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને સાવ સસ્તું $70 આસપાસનું ક્રૂડ મળી રહ્યું છે, જે એમના માટે બહુ જ મોટી વાત છે. અને એના કારણે થઈને આ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓમાં તેજી સામે એવિએશન કંપનીઓને સ્વાભાવિક કોઈક તો ફાયદો થશે. આપણને ન મળે તો કંઈ નહીં, પણ એમને તો મળશે. અને આ સિવાય પેઇન્ટ કંપનીઓ, સૌથી મોટો ફાયદો તો પેઇન્ટ કંપનીઓને થશે, કેમ કે ક્રૂડ ઓઇલ સસ્તું થવું એ એમના માટે બહુ જ મહત્વપૂर्ण बात છે, કેમ કે એક મોટું रॉ मटेरियल છે. अंशुल जी आपके साथ जुड़ चुके हैं आप फोन लाइन पर. बताइए सर, इन दोनों ही काउंटर्स की हम बात कर रहे थे, एक तरफ इंडिगो पेंट्स और दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन. देखिए यशी इंडिगो पेंट्स में अगर देखें तो 120 हफ्ते का बेस बना हुआ है. स्टॉक अगर 1600 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसमें बड़ा ब्रेकआउट बनेगा. ऊपर में 1900 साढ़े 1900 रुपए का टारगेट रहेगा. लेकिन इस स्पेस में जो स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं वो है एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स हमको ज्यादा लग रहा है, अच्छा लग रहा है टेक्निकली और फंडामेंटली. बड़े बेस का ब्रेकआउट भी है तो 3500 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है. तो इस स्पेस में हम इंडिगो से ज्यादा इंटरेस्टेड एशियन पेंट्स में. और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमने अपने क्लाइंट्स को मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एशियन पेंट रिकमेंड भी किया है. दूसरा स्टॉक इंडिगो की आप बात कर रहे थे. इंडिगो में जो एविएशन कंपनी है वहाँ पे बेस ब्रेकआउट है 62 दिन का, लेकिन 7 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है. हाई लाइकली है कि 2 से 3 सेशन और कंसोलिडेट करेगा, मूविंग एवरेजेस कैचअप हो जाएंगे. उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक में 5,050 तक की अपमूव बनेगी. तो फ्रेश बाइंग अगर करना है तो ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए 4885 के ऊपर. उसके बाद बाइंग करते हैं तो 5,050 तक का टारगेट मिलेगा. 5,050ના ટાર્ગેટ્સ આગળ જતા આવતા જોવા મળી શકે છે. એટલે ખાસ ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનની પણ આપણે વાત કરી, અને પેઇન્ટ કંપનીઓમાં એશિયન પેઇન્ટ્સ પસંદ છે સરને, તો તેના પર પણ તમારી નજર હોવી જોઈએ. नेक्स्ट आवो सेंचुरी टेक्सटाइल्स. सर इसके ऊपर फोकस है, 4% से ज़्यादा एक टाइम पे इंट्राडे बढ़ गया था स्टॉक. हिंडाल्को के लिए काफ़ी फोकस है, क्योंकि 400 करोड़ रुपए की एक कॉर्पोरेट गारंटी जो होती है लैंड पार्सल के लिए, वो यहाँ पर ली है. और सेंचुरी टेक्सटाइल्स इस वजह से फोकस में है आज. तो दोनों ही लिस्टेड कंपनी वैसे तो, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है ये न्यूज़ जो था वो. तो समझाइए सर, चार्ट्स कैसे देखेंगे सेंचुरी टेक्सटाइल्स के? अंशुल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सेंचुरी टेक्सटाइल में एक बेस ब्रेकआउट आया है 51 डेज का. उसके बाद स्टॉक ने पुल बैक कंप्लीट किया है और आज के सेशन में ऐसा लग रहा था कि फ्रेश अपमूव देगा, लेकिन अगेन डोजी के साथ क्लोजिंग आई है या शूटिंग स्टार कह सकते हैं. तो 1 से 2 सेशन और इस स्टॉक में वेट करना चाहिए. अगर ये ऊपर में 2442 निकालता है तो फिर इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहिए. टारगेट जो बनेगा वो 2600 साढ़े 2600 का बनेगा. फिलहाल के लिए 1 से 2 दिन के लिए मैं वेट एंड वॉच का अप्रोच रखूंगा. उसकी सबसे बड़ी वजह आज की कैंडल, अगर ये बुलिशनेस के साथ 2440 के आसपास क्लोज होती, मैं आउटराइट बाई की सलाह देता है. तो मैं 1 से 2 दिन कॉशियसली अप्रोच करूंगा.
स्टॉक अगर ब्रेकआउट लेवल्स होल्ड करता है तो मेरे बाइंग इंटरेस्ट में जरूर आएगा। ये हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है काउंटर। हमने अपने क्लाइंट्स को एक बार 2 बार बाई भी रिकमेंड किया है, लेकिन आज की कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव है तो मैं 1 से 2 दिन वेट करूंगा। 2440 निकलने के बाद आउटराइट बाई करना चाहिए। 2650 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ઓકે, સો વ્યૂ અહીંયા આપણને બનતો જોવા મળી રહ્યું છે સેન્ચુરી ટેક્સટાઇલ્સ માટે આગળ જતા સરસ મૂવ આવતો જોવા મળી શકે છે। 2650 સુધીના ટાર્ગેટ્સ તમને બનતા જોવા મળી શકે છે, તો આના પર તમે નજર રાખો। नेक्स्ट स्टॉक सर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर सोना BLW। आज ऑब्वियसली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आई और उसके बाद फ्लैट दिखा था स्टॉक। QIP का एक्शन है और जो इंडिकेटिव प्राइस हैं उसके सामने मूव आती हुई देखने मिली है। सो QIP के मायने से आप देखें तो स्टॉक में एक्शन ज़रूर देखने मिला है, लेकिन सोना BLW सर कैसे देखेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे इस स्टॉक को? देखिए, सोना BLW में IPO बेस बना हुआ है और IPO बेस कंप्लीट हो रहा है। 160 हफ्ते लगभग हो चुके हैं स्टॉक में IPO बेस कंप्लीट करने जा रहा है। 760 के ऊपर निकलते ही स्टॉक में IPO बेस ब्रेकआउट होगा। उसके बाद स्टॉक 1050 का पहला टारगेट रखेगा, 1200 का दूसरा टारगेट रहेगा। IPO बेस ब्रेकआउट जनरली जब भी स्टॉक्स में आते हैं और बड़े ब्रेकआउट आते हैं 2-2.5 साल के, तो स्टॉक में 50% की अपसाइड बहुत आराम से बनती है। तो उस हिसाब से 1050 का टारगेट तो आराम से मिलेगा। एक्सटेंड करता है तो 1200 तक जा सकता है। तो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव जिसको बाई करना है उसका स्टॉप लॉस 670 का रहेगा। हमारी तरफ से सजेशन ये है कि 760 के ब्रेकआउट को सस्टेन होने दीजिए। थोड़ा सा एडिशनल कंफर्मेशन लेने में बुराई नहीं है, क्योंकि अगर फेलियर होता है तो वर्टिकली नीचे भी जाता है स्टॉक। तो कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे। 760 के ऊपर ब्रेकआउट जैसे सस्टेन होगा हम अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे 1050 के टारगेट के साथ। तो आपके दर्शकों के लिए भी यही सलाह है, 760 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद बाइंग कंसिडर कीजिएगा। ઓકે, સો વ્યૂ આપણને આ પ્રમાણે બનતો જોવા મળી રહ્યું છે। મેજર એક્શન આજે QIP ને કારણે થઈને તમને જોવા મળ્યું, આ કાઉન્ટરમાં ફોકસ રાખવાનું રહેશે। नेक्स्ट स्टॉक सर GIC जनरल इंश्योरेंस पर फोकस, क्योंकि OFS जो है वो यहाँ पर चल रहा है, मतलब चल रहा था, अब तो क्लोज हो गया। आज रिटेल के लिए एक्शन था और कल नॉन रिटेल का कुछ 1.08 टाइम्स का OFS में सब्सक्रिप्शन देखने मिला था। मतलब ऑलमोस्ट सबको मिल गया जो नॉन रिटेल में थे। अब रिटेल में भी आज ओवर सब्सक्रिप्शन ज़रूर देखने मिला होगा। जनरल इंश्योरेंस के चार्ट सर कैसे देख रहे हैं? OFS आने के बाद जब थोड़ा सेटल होगा तो किस दिशा में आगे जाते हुए देख रहे हैं आप जनरल इंश्योरेंस GIC को? देखिए, ये चीज स्टॉक में नेगेटिव फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। 410 420 की जो सप्लाई जोन थी मल्टीपल वीक्स है डेली चार्ट पे स्टॉक में, और आज के सेशन में थोड़ा सा ब्रेकडाउन काइंड ऑफ कैंडिडेट लग रहा है। ये कल ब्रेकडाउन था, आज फॉलो थ्रू मूव टाइप की जो लो बनी है। मैं स्टॉक को अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। ना मुझे लॉन्ग का ट्रेड दिख रहा है, ना मुझे शॉर्ट का ट्रेड दिख रहा है। चार्ट पैटर्न बिल्डिंग में है, तो जब तक ये बेस कंप्लीट नहीं हो जाता है मैं स्टॉक को अवॉइड की सलाह दूंगा। बेस कंप्लीट होकर जब ब्रेकआउट देगा तो वो लेवल है फिलहाल के लिए 440 जब क्रॉस करेगा तब मेरा स्टॉक में इंटरेस्ट आएगा। फिलहाल के लिए अवॉइड की लिस्ट में रहेगा। ओके, સો GIC આજે તો ફ્લેટ ક્લોઝ થયું છે, પણ તમને મેજર એક્શન હજુ પણ બતાવતો જોવા મળી શકે છે આવનારા દિવસોમાં, તો નજર તમારે રાખવાની રહેશે। અન્ય કાઉન્ટર્સ પર નજર કરીએ તો સૌથી સારી મૂવ આજે તમને આવતી જોવા મળેલી છે, એમાંથી એક છે ઇઝી ટ્રીપ પ્લાનર્સ। બહુ જ સરસ મૂવ આજે જોવા મળી સ્ટોકમાં, 10%થી પણ વધુની, અને ઇઝી ટ્રીપ જે છે તેમાં ઓલમોस्ट 44-30 हाई बनी गया। सर इजी ट्रिप के प्राइस जो बाद में सेटल हुए हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्शन आज आता हुआ दिखा है स्टॉक में। अगेन जो ट्रैवल सीज़न आ रही है मे बी उसको देखते हुए, और बाकी न्यूज़ वगैरह भी होंगे। इजी ट्रिप प्लान है सर, बहुत ही बड़ा एक्शन आज स्टॉक में देखने मिला है हमें। देखिए, स्टॉक पिटा हुआ था और वीकली चार्ट पे काफी हद तक डाउन ट्रेंडिंग था, लेकिन ये शैलो डाउन ट्रेंड था। प्रीवियस जो दिसंबर 2023 का स्विंग लो था उसके आसपास से स्टॉक में रिवर्सल आया है। 4 हफ्ते 5 हफ्ते बेयर्स में कोशिश की थी कि इसको नीचे की तरफ तोड़ने की, लेकिन वो हुआ नहीं और एकदम से ऊपर आता हुआ दिख रहा है स्टॉक। 44 का एक रेजिस्टेंस था, वहीं पे आज रेजिस्टेंस भी लिया है स्टॉक ने। तो 44-50 अगर निकलता है स्टॉक में तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। 54 तक जा सकता है, तो 44-50 की जोन के ऊपर सस्टेन करे तो ही बाइंग करना है, नहीं तो स्टॉक को अवॉइड करना है। हो सकता है 5-7 दिन कंसोलिडेशन में जाए, उसके बाद ब्रेकआउट दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 44-50 निकले तो आप बाई कीजिए, ऊपर में 54 तक के टारगेट मिलेंगे। तो
તો આ પ્રમાણે અહીંયા ઇઝી ટ્રીપ પ્લાનર્સમાં એક્શન જોવા મળી શકે છે. બહુ જ મોટી તેજી આજે સ્ટોકમાં આવતી આપણને જોવા મળેલી છે. અને આવી જ રીતે જે આ મેજર વેચવાલી આવતી જોવા મળી તેમાંથી એક રહેશે CCL प्रोडक्ट्स. सर ये भी एक स्टॉक एक बार देखिए आप, CCL प्रोडक्ट्स में आज की नहीं है ये, कुछ थोड़े दिनों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है वो बना हुआ देखने मिल रहा है. आज के लो कुछ 777 थे, वहाँ से थोड़ा सा रिकवर हुआ लेकिन ज़्यादा कुछ रिकवरी आई नहीं है वैसे तो डेज लो से. कैसे देखेंगे सर CCL प्रोडक्ट्स? देखिए CCL प्रोडक्ट में एक बेस बन रहा था जो ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था जुलाई 2023 में. एक सवा साल लगा है स्टॉक को बेस कंप्लीट करने में, और अब ब्रेकआउट आया है स्टॉक में 728 ऑड लेवल्स पे, जिसका टारगेट 1050 का बनता है. आज के सेशन में थोड़ा सा स्टॉक में डाउन मूव देखने के लिए मिला है. कल बड़ी अप मूव थी, आज हल्का सा डाउन मूव देखने के लिए मिला है. लेकिन ये स्टॉक ब्रेकआउट अपना रीटेस्ट करने जा रहा है, तो 735 728 की जोन में मिलता है, वहां पे लॉन्ग एक्यूमुलेट कर सकते हैं. ऊपर 1050 का पहला टारगेट रहेगा, तो स्टॉक को बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी में रखना चाहिए. अगर डिप मिलती है 728 के राउंड तो फ्रेश बाय किया जा सकता है. ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. CCL પ્રોડક્ટ્સ મેજર એક્શન આજના દિવસે આવતું જોવા મળ્યું, નજર રાખવાની રહેશે. આગળ વધીએ બીજા કાઉન્ટર્સ પર્ટિક્યુલરલી કે જેમાં સારો બઝ બનતો જોવા મળ્યો હતો. ડાયગ્નોસ્ટિક્સ કંપનીઓમાંથી એક છે વિજયા ડાયગ્નોસ્ટિક્સ કે જેમાં સારી તેજી આજે જોવા મળી છે, 5.5% આસપાસ. ફરી એકવાર सर मॉनसून के सीजन में एक बार तो ये डायग्नोस्टिक्स कंपनियों में अच्छा मूव आता ही है. आज हम फिर से एक बार देख रहे हैं विजया डायग्नोस्टिक्स 964 के हाइज बने और 948 के अराउंड लास्ट में आते सेटल हुआ था ये स्टॉक. काफ़ी अच्छी मूव देखने मिली है विजया डायग्नोस्टिक्स. और देखिए विजया डायग्नोस्टिक में काफी अच्छा लग रहा है. फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 932 ऑड लेवल्स पे. कल के सेशन में कहीं भी 940 932 तक डिप मिलती है तो लॉन्ग एक्यूमुलेट करना चाहिए. 885 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था, और ऊपर में बहुत आराम से 1150 तक ये स्टॉक आपको 2 से 3 हफ्ते में दे सकता है. बेहतरीन कैंडिडेट लग रहा है. एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेट स्टेज ब्रेकआउट है, लेकिन जिस वॉल्यूम पे आया है हाई लाइकली है कि सस्टेन होगा. तो थोड़ी सी मार्केट में रिस्क तो हमेशा ही रहती है, तो थोड़ी सी अगर रिस्क लेंगे यहाँ पे 940 के राउंड बाई करके 885 के स्टॉप लॉस से, तो 1150 तक के टारगेट मिल सकते हैं. ओके, 1150 सुनने टारगेट्स आगे जता मળી શકે છે, नजर रखिए. सर वेदांता भी आज फोकस में था क्योंकि इकरा की ओर से रेटिंग अपग्रेड हो गई है. ऑलमोस्ट एक टाइम पे 2% की तेज़ी थी, लास्ट में 466 की क्लोज है. और मैं साथ में निफ्टी मेटल की भी डिस्कशन करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही है इस इंडेक्स की और बाद में थोड़ा सा रिकवर आज हुआ है, तो फॉलोअप मूव के बारे में हमें सोचना चाहिए कल निफ्टी मेटल पर. और ये वेदांता की हम पर्टिकुलर बात कर लेते हैं साथ ही साथ. देखिए वेदांता में 22 मई से जो लेवल है 478 का, ये बार बार है. VCP पैटर्न की बिल्डिंग है, लेकिन जो लेवल है 478 का ये बार बार रिजेक्ट कर रहा है. तो मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हूँ. पैटर्न अच्छा डेवलप हो रहा है, शैलो वॉल्यूम्स है, यानी किसी तरह का सेलर या इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है. लेकिन ब्रेकआउट बहुत जरूरी है स्टॉक को मोमेंटम गेन करने के लिए. आज प्राइमा फेसी ये दिखा है कि मेटल स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग होती हुई दिखी है, तो स्टॉक में भी कुछ हद तक बाइंग रही है, लेकिन मैं ब्रेकआउट पे ही इंटरेस्टेड रहूंगा. 478 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो ब्रेकआउट बनेगा, तब लॉन्ग करना चाहिए. 515 545 दो टारगेट मिल सकते हैं. स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा 460 क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट के बाद. तो 478 के ऊपर जब सस्टेन करता है स्टॉक बाई करना चाहिए. 460 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी लगभग 20 रुपए का आपका रिस्क रहेगा, और ऊपर में 545 तक का फाइनल टारगेट मिल सकता है. तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनेगा. ब्रेकआउट पे ही बाई करना है. પર ખરીદી લો. વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. વેદાંતા મેટલ સ્ટોક્સની પણ વાત કરીએ આપણે. જબરદસ્ત એક્શન આજે જે છે તે આવતું જોવા મળેલું હતું. હિન્દુસ્તાન ઝિંક પણ ફાઇનલી તમે જુઓ, વેદાંતા હિન્દુસ્તાન ઝિંક બંને પેરમાં આજે ચાલ્યા છે અને જે કંઈ પણ OFS વગેરે હતું તે બાદની સેટલમેન્ટ હવે અહીંયાથી આવતી જોવા મળી રહી છે. आगे बढ़ते हैं सर. आपने बैंक्स पे थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव किया है. प्राइवेट बैंक्स ऑब्वियसली मूव करेंगे, लेकिन सरकारी बैंक्स में से आप देखें तो आज इंडियन बैंक ने थोड़ा मूव दिखाई है, अच्छी मूव है और 3.25% चल गया था इंडियन बैंक सर. 551 की क्लोज है आज की. देखिए इंडियन बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी तेजी जरूर डेवलप हुई है, लेकिन बहुत हद तक मेरे को इस टाइप का पैटर्न नहीं दिख रहा है कि मैं फ्रेश बाय रिकमेंड करूं.
अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, मैं अवॉइड की लिस्ट में ज्यादा रखूंगा। 578 क्रॉस होता है तो एक बार के लिए आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, बट ये वो स्टॉक नहीं है या वो पैटर्न नहीं है जो मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो मेरी तरफ से अवॉइड की लिस्ट रहेगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जरूर तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है, तो अगर आपको बैंक्स में तेजी प्ले करना है तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में प्ले कीजिए। ओके, सो इसके ऊपर हमारा फोकस ज़रूर रहना चाहिए। और इसी के साथ ही वक्त हो चला है विदा लेने का। सर, जो भी हमने डिस्कशंस किए हैं उसके लिए आपके डिस्क्लेमर्स। देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के और कंपनी पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू સો મચ સર। તો ભારતીય માર્કેટ્સ તમે જોયું જે પ્રકારે આજે એક નર્વસનેસ હતી, ડેફિનેટલી નર્વસનેસ હતી, પણ હવે આગળ શું કરવું તેના ઉપર ફોકસ જે છે તે ભારતીય માર્કેટ્સ કરી રહ્યા છે। મે બી પોસિબલ છે બેંક્સ તૈયાર થઈ રહ્યા છે નવી મૂવ માટે। 51,500 થયું નથી, આજનું ક્લોઝ પણ જલ્દી થઈ જશે તેવું લાગી જરૂર રહ્યું છે। અને મિડ કેપ સ્મોલ કેપમાં તો તેજી છે જ, એટલે ઓવરઓલ કોઈ ટેન્શન વધારે છે નહીં। નિફ્ટી થોડું કન્સોલિડેટ થવું હોય તો થઈ જાય, કંઈ વાંધો નથી, આમ પણ લાંબી તેજી જોયેલી છે। તો આ સર જ આ શોમાં પણ હાલ બસ આટલું જ। મને યશને આપજો રજા। આગળના અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ ગુજરાત।